Assalamu alaikum class. Our today's topic is active voice and passive voice. Okay, objectives are: define what voices of verb are. Active voice from passive voice. Differentiate active voice from passive voice. Convert an active voice sentence to passive voice sentence. Convert a passive voice sentence to an active voice sentence. ठीक है, these are the objectives of today's class. Okay, what is the voices of verb? In traditional grammar, voice of verb is defined as the quality of verb that indicates whether its subject act or is acted upon. It has two types, the active voice and the passive voice. What is an active voice? The active voice sentence is the normal voice. This is the voice that we use most of the time. In the active voice, the object receives the action of the verb. Marilyn mailed the letter. Okay, Marilyn the mailed the letter. Active voice sentence is Marilyn mailed letter. Subject is Marilyn, mail is verb, and the letter is object. For example, the dog jumped onto the boy. The dog is subject. Okay, the dog is subject. Is throwing, the jumping is verb, and onto is preposition, like the boy is object. Kirsty will give a book report to the class. Kirsty is subject. Is drawing, the giving is verb, to the class is object. The simple formula of active voice and passive voice is: in passive voice हम क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, सेंटेंस की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पर लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, और हम पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. ये बात याद रखिएगा. और हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, लाइक बाय का. ओके, समटाइम नहीं भी यूज़ करते, बहुत से सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं, बट मोस्टली हम पैसिव वॉइस में हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं बाय. ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. ये एक सिंपल आप कह लें कि एक सिंपल आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसकी अरेंजमेंट को कैसे चेंज किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप्स ऑन how to convert active voice to passive voice. Step on how to convert active voice to passive voice: move the active sentences direct object into the sentence subject slot. Active voice and passive voice. Marilyn mailed the letter. Direct object, the letter is subject. Okay, Marilyn mailed the letter. नेक्स्ट देखिएगा, प्लेस द एक्टिव sentence subject into a phrase beginning with the preposition by. Active voice and passive voice. Marilyn mailed the letter. Subject, the letter, and by Marilyn. By Marilyn is prepositional phrase. Okay, Marilyn is subject, mailed is verb with third form. Okay, the letter is object, and by is a preposition. Add a form of the auxiliary verb be to the main verb and change the main verb's form. ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वही आपको एग्जांपल है जो रिपीट बार बार की जा रही है. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. मैरिलन मेल्ड द लेटर. मेल्ड, ओके, थर्ड फॉर्म यूज द लेटर वॉज मेल्ड बाय मैरिलन. एक्सिलरी वर्ब्स का आप एडिशन कर रहे हैं इसमें. ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, प्रपोजिशन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट सेंटेंस है यहाँ पे. व्हाट इज द पैसिव सेंटेंस? अ पैसिव वॉइस इज लेस यूजुअल. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स the action of the verb. We use the passive voice when we want to make the active object more important. The letter was mailed by Marilyn. Okay, the letter
was made by Maryland. ओके मैं अगेन रीडिंग करती हूँ पैसिव वॉइस की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. द पैसिव वॉइस इज लेस यूजुअल. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. We use the passive voice when we want to make the active object, okay, when we want to make the active object more important. The letter was mailed by Marilyn. Okay, boy is a subject, was being jumped on, okay, verb है, by the dog is object. The boy was jumped on by the dog. A book report will be given by Chemistry to the class. Report is a subject, okay. A book report is a subject, will be given is verb, by Chemistry is object. Okay, step on how to convert passive voice to active voice. Passive voice to active voice. Subject into the active voice, subject into the active sentence, direct object slot. Okay, passive voice, the letter was mailed by Marilyn. This is a passive voice. And active voice sentence is mailed the letter. The letter is direct object. Okay, remove the auxiliary verb be from the main verb and change main verb's form if need. Active voice and passive voice. Okay, passive voice is the letter was mailed. Active is mailed the letter. Okay, mailed the letter is a verb, active voice. And the passive voice is was mailed. थर्ड फॉर्म यूज हुई, एक्सिलरी वर्ब का यूज किया हमने. प्लेस द पैसिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय इनटू द सब्जेक्ट स्लॉट. Passive voice and active voice. By Marilyn, the use of preposition. By is a preposition. By Marilyn, object of preposition by. Marilyn mailed is subject. Okay, next there are some examples. Like infinitive is to be watched. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्रपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं. समटाइम बाय का यूज़ नहीं भी करते हैं, चाहे वो जैसा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं. ओके, चाहे वो जो भी सेंटेंस है, हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम एक्सिलरी वर्ब का एडिशन कर लेते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ कर लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, सिंपल टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंडीशनल है यहाँ पे. लाइक हमने इफ़ का यूज़ जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इफ़, वुड, ये वाले यूजेस जब आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज में आ जाते हैं, कंडीशनल. ओके, प्रेजेंट में इट इज़ वॉश्ड. वॉश्ड इट इज़ अ थर्ड फॉर्म, इट इज़ वॉश्ड. इट वॉज वॉश्ड. एक्सिलरी इज, वॉज, विल, दीज आर एक्सिलरी वर्ब्स. It will be washed, it would be washed. It would be washed, like a conditional verb. Okay, conditional sentence it is ना. Okay, continuous में हम क्या करते हैं, हम be के साथ ing का addition कर देते हैं. like the being, it is being washed. Okay, हम क्या करते हैं, हम इज़, एम, आर. ओके, क्या शो कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट इन, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को देखें, इज़, एम, आर और आई एन जी का हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ. ओके, बी के साथ हम आई एन जी का यूज़ करेंगे, बी, बीइंग वॉश्ड. ओके, ये आपको यहाँ पे जस्ट पैसिव वॉइस दिखाए गए हैं. फ्यूचर, इट विल बी बीइंग वॉश्ड, इट वुड बी बीइंग वॉश्ड. एंड परफेक्ट टेंसेस में हम क्या करेंगे, हम हैज़ बीन, हैड बीन ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. इट हैज़ बीन वॉश्ड, इट हैड बीन वॉश्ड, विल हैव बीन, वुड हैव बीन कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाएगा. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन एंड बी के साथ आईएनजी का एडिशन करके हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है. इट हैड बीन बीइंग वॉश्ड. ओके, पास्ट को देख लें, फ्यूचर को देखें, इट विल हैव बीन बीइंग वॉश्ड, इट वुड हैव बीन बीइंग वॉश्ड. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वुड के साथ हमेशा वुड हैव, ओके,
कुड हैव हम हैज़ और हैव का इसके साथ यूज़ नहीं करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल फ्रेजेस में। ओके, ये आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, कुछ पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स दिखाई गई हैं जिनको देख के आप इजीली समझ सकते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। और स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक में, इंटर में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमें पता है पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है। टुडे हम जस्ट क्या कर रहे थे, हम रिवाइज कर रहे थे। ओके, हम रिपीट कर रहे हैं, हम जो पढ़ चुके हैं उसको बस रिवाइज कर रहे थे कि हमने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं, बिकॉज योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूलाज और कंस्ट्रक्शन एक सेंटेंस की एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस जो मैंने यहाँ पे बताई है आपको, आप उसको ध्यान से याद रखिएगा, नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि हम जब अपना बुक के ऊपर से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, वहाँ पे जो आपको पैसिव वॉइस का जो यूनिट्स दिए गए हैं उनको जब हम रीड करेंगे तो आप इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकोगे कि वहाँ पे वो चीज़ें किस तरह से दिखाई गई हैं, क्या है, कंडीशंस किस तरह बनाई जाती हैं। ओके, सिचुएशन क्या है, सिचुएशंस को क्रिएट करना। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हम एक दफ़ा देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, क्या लर्न किया हमने। ओके, डिफाइन व्हाट वॉइसेस ऑफ वर्ब। ओके, वॉइसेस ऑफ वर्ब को देखा, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस फ्रॉम पैसिव वॉइस, इनमें क्या डिफरेंस है हमने ये भी देख लिया। ओके, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना, ठीक है, ये भी हमने आज लर्न किया है। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू एन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस टू एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, ये भी हमने आज लर्न किया है। ओके स्टूडेंट्स, this was our today's lecture. Allah Hafiz. Have a nice day.